Hello students, how are you guys? I hope all of you doing good. Guys, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series guys. So far guys, in this series we are solving previous year INMO question papers starting with year 2000 and moving towards 2020, right? So far guys, we have solved questions from the INMO 2000 to 2008. All those papers are completed. 9 years worth of papers are already complete. So guys, all those videos you can find on our channel, and also a playlist has been formed. You can see the videos in an order there also. Okay, so right now we are going through INMO 2009. उसका लिए भी guys हमने first 3 questions कर लिए हैं already. Again the videos you can find on the channel. And today we are going to solve the 4th question of INMO 2009. Okay. So guys, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since graduating, since past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads, KVPY, etc. Okay. So guys, आज का जो question है, that is based on combinatorics and some common thinking logic. Okay. And we'll see the question. मैं आपसे again यही बात request करूंगा कि मैं एक बार अभी आपको question दिखाऊंगा, right? So please pause the video and try to solve the question by yourself first. अपने आप से question को solve करने की कोशिश करो पहले, because that will again, as I've said this thing now multiple times in all the previous videos also. हर बार मैं repeat कर करके अब तो मैं भी थोड़ा बोर हो गया हूँ. The thing is, you have to give it a good attempt. अगर हो जाएगा then it is good. अगर नहीं भी होगा then obviously take some learning points away from it. Okay, so बहुत जरूरी है guys ये बात. All right. So all right guys. So let us see the question. All the points in the plane are colored using 3 colors. एक plane के अंदर बहुत सारे points हैं, right? They are colored using the 3 colors. We have to prove that there exists a triangle with vertices having the same color, such that either it is isosceles or its angles are in GP, geometric progression, right? That is the question. So guys, please try it. Please pause the video and this question को try करो, and I will discuss it in a few seconds. Like after you unpause it, I'll be discussing it, of course, right? So guys, okay. So I am assuming guys सबने अपना attempt दे दिया इसको, okay? Pause करने के बाद, so let's see this, let's understand this question. So guys, ये वही बोल रहा है कि plane के अंदर बहुत सारे points हैं. We can take some points in some particular way, and we have to prove that there will exist a triangle of the same color, जिसके vertices same color के हैं, such that either it is isosceles or its angles are in GP, okay? Geometric progression में. So guys, it's a very interesting way of solving this question. बहुत मजेदार है. Solution बहुत छोटा सा है, but it's quite amusing or interesting, right? So guys, what I'm going to say is take 7 points, okay? Select some 7 points on a circle which are forming a regular heptagon, 7-sided polygon, okay? So what I'm trying to say here is मैं आपको circle draw कर देता हूं यहाँ पे, okay? So guys, हमने एक circle draw कर लिया. मैं क्या बोल रहा हूं? Okay, take 7 points. मैं मार्क कर रहा हूं 7 पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेटली. लाइक दिस. सो दीज 7 पॉइंट्स आर सपोज टू बी इक्वली डिस्टेंट, राइट? 7 पॉइंट्स हैं विच विल फॉर्म अ रेगुलर हेप्टागन. रेगुलर हेप्टागन है मतलब इक्वली डिस्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स, राइट? सो आई हैव टेकन दिस 7 पॉइंट्स A, B, C, D, E, F, G, करेक्ट? तो इस तरह से हमने 7 पॉइंट्स बना ली हैं, right? All these are equidistant. Okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, rather not make, take 7 points, 7 equidistant point, ऐसा लिख देता हूँ, 7 equidistant, okay, sorry, take 7 equidistant points on a circle so that these are vertices of a regular heptagon. All right guys, I hope it is clear. 7-sided regular heptagon. आपने 7 ऐसे points ले लिए हैं, ठीक है? So guys, now they are to be colored, right? Now this is very interesting. Using the pigeonhole principle. देखो guys, आपके पास 3 colors हैं. Now let us assume you have 3 colors
x, y and z, right? These are the three colors. Let's say example दे रहा हूँ. These are the three colors, right? These are the three colors that you have, x, y and z. Now, so guys, क्या होता है? See this thing. Now I will be able to claim that out of the 7 points, there will be at least 3 points of the same color, right? That is using the pigeonhole principle. अब इसको दूसरा सोचने का तरीका क्या है? देखो, how to prove this thing that there will be at least three vertices of the same color. अब ये कैसे प्रूव करूंगा? यूजिंग पिजनहोल प्रिंसिपल. अब बेसिक कॉन्सेप्ट इज ट्राई टू डिस्प्रूव इट. जो मैंने क्लेम किया उसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो लेट अस अज्यूम कोई भी कलर के अगर 3 पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब कम है उससे. सो गाइस सोचो, आपके पास 3 कलर्स हैं और आपको अगर मैक्सिमम उनको 2-2 वर्टिसेस बना सकते हो सेम कलर के, सो फिर तो आप 6 ही वर्टिसेस को कलर कर पाओगे ना उन 3 कलर्स के साथ, राइट? You colored 2 vertices with the x color, 2 vertices with the y color and 2 vertices with the z color. तो 6 ही vertices हुए, है ना? You can only color 6 vertices. In this way, you are only able to color 6 vertices, right? Of 3 different colors. अब जो 7th vertex है उसको किसी कलर से तो करना पड़ेगा ना, right? So what I can assume now is, I'll state here now, there will be at least 3 vertices of the same color, right? That is by using PHP or pigeonhole principle, right? We are using pigeonhole principle, PHP बोल रहा हूं मैं उसको. So using PHP, I can say there will be at least 3 vertices of the same color. I hope this concept is clear, है ना? क्योंकि 7 vertices हैं और आपके पास 3 colors हैं, तो कम से कम एक पॉइंट कोई ऐसा हो जाएगा या फिर 3 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जो कि सेम कलर के होंगे ही होंगे. आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि 7 vertices को आप 3 कलर्स के साथ कलर कर रहे हो और कोई भी एक कलर 3 बार नहीं आ रहा, हो ही नहीं पाएगा. मैंने जैसे आपको बताया ना डिस्प्रूव करके कि लेट से आपने 2 कलर के कर दिए, मतलब 2 vertices सेम कलर के कर दिए, तो 6 vertices कवर हुए, एक फिर बच गया. अब उसको जब पेंट करने जाओगे, कलर करने जाओगे, तो किसी एक कलर से तो करना पड़ेगा ना, और उस कलर के 3 वर्टिसेस हो जाएंगे आपके पास. सो दैट इज द एटलीस्ट. तो 3 वर्टिसेस आ गए गाइस. पहले अब ये चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली है कि दैट देयर विल बी 3 वर्टिसेस, एटलीस्ट 3 वर्टिसेस ऑफ द सेम कलर, राइट? नाउ गाइस, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, है ना, मतलब ये सिमेट्रिक तो होगा ही. हम ये सोचते हैं गाइस, जो सेम कलर वाले अब वर्टिसेस हैं, 3 लेके चलते हैं, 3 के लिए बात करते हैं. 3 या 3 से ज्यादा के लिए तो अपने आप ही हो जाएगा अगर मैंने 3 के लिए करके दिखा दिया, है ना? सो गाइस, अगर मेरे पास 3 वर्टिसेस कलर करने, कैसे कैसे हो सकते हैं उनके बीच में? गाइस अब मैं एक आइडिया बताता हूं. यहाँ पे जो आर्क है ना, उसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ L. मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना? हर आर्क की लेंथ L है, ठीक है? तो टोटल सबकी लेंथ कितनी होगी? 7L, क्योंकि 7 आर्क्स हैं, 7 इक्वल L वाली आर्क्स हैं, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? देयर आर 7 आर्क्स, 7 आर्क्स ऑफ लेंथ L, ठीक है? ऐसा डिफाइन कर देते हैं. तो गाइस अगर मैं 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा, इफ आई एम सेलेक्टिंग 3 वर्टिसेस, सो इन बिटवीन देम देयर विल बी 7L डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? 7L को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना अमंग 3 पार्ट्स. मैं एग्जांपल देके बता देता हूं. लेट्स से यू सेलेक्टेड दीज 3 वर्टिसेस A, B एंड D. लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं. A, B एंड D आपने 3 वर्टिसेस सेलेक्ट किए ना, तो जो पहले 2 वर्टिसेस हैं, मतलब L, 2L एंड 4L, है ना? A और B के बीच में एक आर्क आ रही है L, B और D के बीच में 2 टाइम्स L आ रहा है क्योंकि 2 आर्क्स हैं सेम, और D से A के अंदर क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही चलेंगे हमेशा, ठीक है? सो D से A तक जाने में 4 आर्क्स आ गई, तो 4L हो गया, राइट? So it's like I have to distribute, so I will tell you, so it's like I have to distribute 7L among 3 parts. 3 parts में डिवाइड होगा ना अगर 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं. So let those 3 parts be small ABC, ऐसा मान लेते हैं. A plus B plus C is supposed to be 7L, है ना, राइट? A, B and C are supposed to be 7L, और वो A, B, C भी L के मल्टीपल्स में बोलेंगे, राइट? सो गाइज नाउ लेट्स थिंक कि कितने वेज में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. लेट अस सी 7L में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड इट इज वेरी लिमिटेड केसेस. सी फर्स्ट केस 1 1 5, ठीक है ना? अब देखो इसके अंदर हम ऑर्डर को
कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज आपको तो ट्राइंगल फॉर्म करने से मतलब है ना, तो वो गैप सेम होना चाहिए बस। हमें क्या मतलब है 115 है कि 151 है, वो बात तो एक ही आएगी, है ना। सो 1155 इज वन ऑफ द केस। ओके, सो 1 2 एंड 4 इज द केस, है ना, इस ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। थर्ड केस क्या होगा, 1 2 4 हो गया, सो 2 2 एंड 3, राइट, एंड द लास्ट फोर्थ केस 3 1 3 3, राइट। और कोई केस है ही नहीं, और किसी तरीके से आप बांट ही नहीं सकते इसको 7 को। यू विल नॉट बी एबल टू डिवाइड 7 इनटू एनी अदर टाइप ऑफ केस, राइट। 2 2 3 आ गया, 1 3 3 आ गया, कुछ भी नहीं कर सकते। 5 से ऊपर जा नहीं सकते आप किसी एक साइड को, है ना, और तीनों को 2 से छोटा कर नहीं सकते, ठीक है। सो these are the 4 cases. Now let me show you guys each of the case what does it mean, क्योंकि 115 के केस में एक्चुअली होगा क्या, this type of triangle in this case when the gap is L L and 5L, right, it's basically L L and 5L, तो ऐसे केस में you'll form an isosceles triangle, ठीक है। मैं दिखा देता हूं कैसे। सो एक काम करते हैं, लेट मी कॉपी दिस एंड इसी से बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस देखते हैं गाइस। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, बाकी केस आपको इजीली समझ में वैसे भी आ जाएंगे। ओके, सो 1 1 एंड 5, ओके। ओके, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ऑलराइट गाइस, सो 1 1 एंड 5 कैसे होगा, 1 1, तो गाइस इट्स लाइक ए बी सी, तीनों को चूज कर लिया, तो अब ट्राइंगल कैसा बनेगा आपके पास। सो सी, दिस इज अ ट्राइंगल दैट विल बी फॉर्म्ड। यू हैव सिलेक्टेड 3 वर्टिसेस L L और 5L के गैप पे, है ना, ए और बी एंड देन सी, 2 L के गैप पे आ गए, तीसरा तो अपने आप ही 5L बचेगा। सो लेट्स जॉइन ए बी BC and AC. Okay, let me draw it with a line like this, right guys। तो मैं चलो डायग्राम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, बट ज़रूरत भी नहीं है उसका, है ना। सो आई कैन डिलीट दिस। चलो, ओके, सो लेट मी शो यू गाइस दिस। सो गाइस देखो, अभी आपके पास जो ट्राइंगल बन रहा है, ओके, सो दिस ट्राइंगल दैट यू हैव फॉर्म गाइस, देखो लॉजिक यहां से समझ में आएगा गाइस। आपके पास जो 115 का मतलब क्या हुआ, जब 1 और 1 सेलेक्ट हुआ तो वो कॉर्ड की लेंथ इक्वल नहीं होगी, ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, तो आइसोसेलेस बन गया, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। इस तरह से सिंपली आइसोसेलेस ही बनेगा ना ट्राइंगल तो। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, जब 1 2 और 4 की बात आएगी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम इटसेल्फ 1 2 4 की डायग्राम कैसे बनेगी, देखो, है ना। यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। सो दिस इज द डायग्राम इन दैट केस, सेकंड केस के लिए। उसके बाद के लिए और आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ओके, आई गेस यू कैन नॉट सी दिस। ओके, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे शो कर देता हूँ गाइस आपको सेकंड केस। ओके, सो एज वी सेड 1 2 एंड 4, ये केस तो बना ही हुआ है ना डायग्राम। सो यू कैन सी कि क्या बन रहा है। सी दिस, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए बी देन बी डी, बीच में उनके गैप कितना है, 2L का गैप है, एंड देन द थर्ड वन, राइट, ये ज्वाइन हो गया। सो गाइस ये ट्रायंगल बन रहा है एबीडी का, एबीडी टाइप का, जिसमें ए और बी के बीच में L का गैप है, बी और डी के बीच में 2L का गैप है, बाकी का गैप 4L है, राइट, दैट इज द डायग्राम। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन गाइस। नाउ मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, देखो। Now what will happen in such particular case? These are in GP. In this particular case, angles are in GP. कैसे पता लगेगा ये? सोचो, क्योंकि L, 2L and 4L आ रहा है। So think about it. लॉजिक ये बनता है गाइज, देखो मैं एग्जांपल बता देता हूं। AB जो कॉर्ड है, ठीक है, वो सर्कल पे कितना एंगल सब्टेंड करेगी,
half of the angle it subtends on the center. So basically आप बोल सकते हो ना कि जो एंगल opposite to a side is dependent upon the length of the arc, क्योंकि सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है सर्कल के ऊपर उसका आधा करता है, राइट? एंड जो एंगल्स ये सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं वो सारे तो जीपी में है ना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. आप सोचोगे 1 to 4 के एंगल्स जीपी में कैसे आएंगे? इन दिस केस आई विल से एंगल्स आर इन जीपी. कैसे? अगेन एज आई सेड, ध्यान से सुनना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल इज हाफ फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. और अगर मुझको ये वाले एंगल जीपी में प्रूव करने हैं कि जो सर्कल पे सबटेंड हो रहे हैं वो जीपी में है, तो इसका मतलब सेंटर पे वो जो एंगल सबटेंड करते हैं वो भी जीपी में होने चाहिए, करेक्ट? वो भी जीपी में होने चाहिए. एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट, राइट? यही होता है. अगर आप 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क लेते हो तो 1/4 ऑफ द एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, राइट? सो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, और आर्क की लेंथ जीपी में 1, 2 and 4 आर इन जीपी, राइट? तो एंगल सबटेंडेड बाय दोज आर्क्स एट द सेंटर आर इन जीपी, एंड फर्दर उनका हाफ जो होगा वो भी जीपी में होंगे, राइट? इफ यू हैव अ जीपी एंड यू डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 2 देन स्टिल इट इज इन जीपी, राइट? ये तो होता ही है ना. देखो, इफ यू हैव अ जीपी ए आर स्क्वायर देन यू डिवाइड बाय 2, a by 2 r एंड a by 2 r स्क्वायर, ये स्टिल जीपी में है, करेक्ट? लॉजिकली क्लियर हो गया ना? दिस इज स्टिल इन जीपी इफ दिस वाज इन जीपी, ठीक है ना? तो सेम इस लॉजिक से हम बोल रहे हैं 1, 2 और 4 के केस में क्या होगा? एंगल्स आर इन जीपी, ठीक? नाउ द नेक्स्ट केस 2, 2, 3, फिर से वही बात आ गई. दो सेम हो गई ना साइड्स, दो आर्क सेम हो गई, इसका मतलब उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड सेम होगी लेंथ. तो ये क्या बन जाएगा? फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब ये मुझे ड्रॉ करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम द लॉजिक, है ना? एंड 1, 3, 3 अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल. I'll write here once. अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स में 3 3 है और एक बीच में 1 है, ठीक है ना? सो यहाँ पे और यहाँ पे. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो 3 केसेस में आइसोसेलेस बनेगा, एक केस में जीपी में होंगे एंगल्स, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, राइट? नो अदर केस इज पॉसिबल. सो दैट इज द प्रूफ गाइस, दैट इज द फाइनल प्रूफ. आप यहां से बोल सकते हो दैट. सो वी हैव नाउ प्रूवन. सबसे पहले देखो मैं दोबारा से ब्रीफली बताता हूं. हमने क्या बोला कि 7 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ले लो सर्कल के ऊपर विच विल फॉर्म अ रेगुलर हेप्टागन. दैट इज द की वर्ड गाइस हियर, रेगुलर, है ना? इक्वली डिस्टेंट होने चाहिए वो पॉइंट्स, तो रेगुलर हेप्टागन ही चाहिए, ठीक है? आफ्टर दैट वी सेड बाय यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल दैट आउट ऑफ द 7 एटलीस्ट 3 विल हैव टू बी ऑफ द सेम कलर. कोई 3 वर्टिसेस तो सेम कलर के होने ही पड़ेंगे बाय यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल. एंड देन वी सॉ वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिस्टेंसेस हो सकते हैं, वो हमने देख लिए. 7L होना चाहिए ऐड होके. सो द केसेस, देयर आर 4 केसेस, 1, 1, 5, 1, 2, 4, 2, 2, 3 एंड 1, 3, 3. एंड इन 3 ऑफ देम यू विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जो जिसमें नहीं हो रहा आइसोसेलेस उसमें एंगल जीपी में. सो दैट इज वाज द होल क्वेश्चन. वी हैव प्रूवन दैट देयर विल एग्जिस्ट अ ट्राइंगल with vertices having the same color such that one of either it is isosceles or its angles are in geometric progression GP, right? So guys, this was like one of the easier way question. मैं मुझे लगता है INMO 2009 overall थोड़ा easier side पे जा रहा है, I think so, but this question was kind of much easier, right? पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए if you are aiming for that, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आओगे ना, it will highly affect your chances of qualifying INMO, right? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, right? That is the thing about it. Okay, all right guys, that's it. I hope सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, मजा आया. If you understood this question, please like this video and subscribe to our channel, and then we'll see you in the next video guys. We'll come back with the 5th question of INMO 2009. Till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye, take care. Hello students, guys, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. Now since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को एग्जाम है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है. and this is one is a recorded course, daily session रहेगा आपका, है ना? टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. so we are going to launch this course named last mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना? for IOQM, if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैच इज फॉर क्लास 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं,
बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22nd August. सो सर गाइज 22nd August से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन. सो फॉर 1.5 hour. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course, you'll be getting 40 topic-wise recorded lectures. Same lectures that are going on and that have already been, done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic-wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay, and in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay, and one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IOQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो level 1 और level 2 जरूर करना important है, right, if you want to qualify for IOQM. तो guys second level में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IOQM level plus questions हैं, and in the level 3 you will get RMO plus INMO level questions. So that will be like kind of आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it. But level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. You'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस. जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट. ठीक है ना, वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर like pricing it very nominally. So I would suggest if you're positive and you want to have enthusiasm about IOQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40
lectures and after 40 lectures आपका level का difference आप खुद महसूस करोगे. You'll yourself feel the difference in your own knowledge after attending this 40 lectures. Okay, so that is all from my side, guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से बैकलॉग ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify OQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो. Okay, so that is it from my side, guys. Thank you, guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you, guys. Bye bye. Take care.